Yes, I am Jayshree Miss. Now today I am going to start the chapter 17th chapter says special type of quadrilaterals. Now in this quadrilaterals, first of all we will see about the parallelogram. So parallelogram is like this. In which opposite sides are equal, and by diagonals they bisect each other, and opposite angles are also equal and parallel to each other. Opposite sides are parallel to each other. And second is a rhombus. In the rhombus, these all sides are equal, and diagonals they are perpendicular to each other and bisect each other. So this is parallelogram in which opposite sides are equal and their opposite angles are also equal. And in rhombus all sides are equal and diagonals they are perpendicular bisect each other and they are perpendicular to each other and bisect each other. Now let us move on to the sums. First sum. Question number 1. In a parallelogram ABCD, angle A is equal to 3 times angle B. Find all the angles of parallelogram. And in the same parallelogram, if AB is equal to 5x minus 7 and CD is equal to 3x plus 1, find the length of the CD. Now in the parallelogram ABCD, so let us draw this parallelogram. A, B, C, D. Right? What is given in the question? That angle A is equal to 3 times angle B. So let us consider that angle B is equal to x. Therefore, angle A is equal to 3 times, so 3x हो गया, right? Now this AD is parallel to these are parallel. So parallelogram में opposite sides are parallel. So AD is equal to parallel to BC. Therefore, angle A plus angle B equal to 180 degree. Interior alternate angle, co-interior angle, So angle A plus angle B equal to 180 degree. Reason है co-interior angle. Co-interior angle means क्या? उनको दोनों का total कितना होता है? 180 degree. Because this line is parallel. Parallel तो ये angle है और ये angle, तो they are co-interior. means इसका दोनों का total कितना आएगा? 180. तो angle A plus angle B equal to 180. तो angle A is 3x, angle B is equal to x equal to 180 degree. तो 4x is equal to 180 degree. तो x is equal to 180 upon 4. तो 4 4s are 16, 4 5s are 4 4s are 16, 20, 4 5s are 20, 45 degree. So this is the angle B. Angle B is equal to 45 degree. So angle B is equal to 45 degree and angle A is equal to 3 into 45 is equal to 135 degree. So we got this answer, angle. Now what is asked here? Find all the angles. अभी all the angles find किया तो हम लोग को एंगल B कितना मिला? 45 मिला और एंगल A कितना मिला? 135 मिला. Now in the parallelogram opposite angles are equal, right? So angle A equal to angle C is equal to 135. Angle B equal to angle D is equal to 45 degree. Right? So this is first question we have completed. All the angles. So हमने all the angles हमने find कर लिए. Now second question क्या पूछा है कि if AB is equal to AB is equal to 5x plus 7, 5x minus 7 and CD is equal to 3x plus 1, find the length of the CD. So first part is completed. Now second part move on to. Now इसमें क्या बोला है कि side AB is equal to 5x minus 7 and CD is equal to 3x plus 1. Now as I told you, in the parallelogram opposite sides are equal.
तो ए बी इक्वल टू सी डी, हम लोग इक्वलाइज करेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, राइट। नाउ 3x को हम लोग ये बाजू ले लेंगे और माइनस 7 ये बाजू तो प्लस 7। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल 1 प्लस 7, तो 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। तो अपने को x का वैल्यू मिला 4। अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सी डी का लेंथ ये। तो नाउ लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू, अभी कितना है 3x प्लस 1। नाउ वी फाउंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 4 हियर। तो 4 प्लस 1, 3 4s are 12 प्लस 1 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द सी डी, राइट। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, all about this. Now question number 2. Now question number 2. In a parallelogram PQRS, angle Q is equal to an angle S is equal to, calculate Q and R. Now in a parallelogram PQRS, तो एंगल Q ये वाला एंगल Q है एंड एंगल S दिस वन, ऑपोजिट एंगल्स। तो इज गिवन एंड कैलकुलेट Q एंगल Q एंड कैलकुलेट एंगल R। नाउ एज आई टोल्ड यू कि इन द पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड तो इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, देखो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी एंगल Q कितना दिया हुआ है, 4x माइनस 5 इक्वल टू 3x प्लस 10। 3x को हम ये बाजू ले लेंगे, इधर क्या आएगा माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 3x एंड 10 प्लस 5। तो x इज इक्वल 4x माइनस 3x x, 10 प्लस 5 15। तो अभी अपने को x इज इक्वल क्या मिला 15। तो अभी क्या फाइंड क्या करना है अपने को, एंगल Q। तो एंगल Q ये, सो एंगल Q कितना है, एंगल Q इज 4x माइनस 5, 4x माइनस 5। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 5, 15 4 जा 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो वी गॉट दिस एंगल Q इज इक्वल टू 55 डिग्री। नाउ एंगल R, तो ये दोनों कोइंटर एंगल है, कोइंटर मींस इसका दोनों का टोटल कितना है 180। सो एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री। तो 5 1 1 125 डिग्री सेल्सियस तो आएगा। तो एंगल R इज इक्वल 125 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 55 डिग्री। वी गॉट द आंसर। समझा, दोनों का मींस ये एंगल है, दोनों का ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दोनों को इक्वलाइज करो। x का वैल्यू फाइंड करने का, x का वैल्यू एंगल Q में सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द एंगल Q 55 डिग्री। देन आप एंगल Q एंड R दे आर कोइंटर एंगल्स, दोनों का टोटल 180 होता है। तो 180 में से हम लोग ये 55 डिग्री माइनस करेंगे, तो यू विल गेट 125 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. In a rhombus ABCD, angle A 74 and angle B find out करना है। हाँ, now rhombus. In rhombus all sides are equal, right? And diagonals they are perpendicular to each other, right? अभी क्या पूछा है इसमें, एंगल A, तो एंगल A B C D। हाँ, तो एंगल A इज गिवन, एंगल A कितना है 74 है, ये वाला 74 है। एंगल B एंड C यू हैव टू फाइंड, एंगल B एंड एंगल C दैट यू हैव टू फाइंड। नाउ ये रोम्बस है, रोम्बस इज एक्चुअली इट इज अ पैरेललोग्राम, बट रोम्बस और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है,
इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे स्क्वायर में कैसे ऑल साइड्स आर इक्वल है वैसे ही रोम्बस में, तो रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम है। तो अभी इसमें एंगल ए दिया हुआ है 74 डिग्री, तो यू हैव टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो अभी एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर इक्वल, राइट? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 74 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट? ऑपोजिट एंगल है। और एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 74 डिग्री, को इंटीरियर एंगल, हाँ को इंटीरियर एंगल, तो आएगा 106 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो दिस एंगल वी गॉट द एंगल। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि AD इज इक्वल टू 7.5, AD ये 7.5 है, तो व्हाट इज BC एंड व्हाट इज CD? In the second part now, what is here? AD is equal to 7.5. So in a rhombus, all sides are equal. So BC is equal to CD is equal to 7.5 centimeter. Reason लिखने का, rhombus all sides are equal. All sides are equal, that's why all sides are equal, so these are the 7.5 centimeters. Question number 3 completed. Now question number 4. Question number 4. इन स्क्वायर PQR है, स्क्वायर में क्या है, तो ऑल साइड्स इक्वल है और 90 डिग्री थे, सब एंगल्स 90 डिग्री थे। तो PQ इज 3 एंड QR इज दिस स्क्वायर, वी ड्रॉ द स्क्वायर, PQRS, PQRS। नाउ PQ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3x माइनस 7 एंड QR इक्वल टू x प्लस 3। एज यू नो साइड्स इक्वल, तो दोनों को ये PQ एंड QR बोथ आर इक्वल, सो हम इक्वल करेंगे, PQ इज इक्वल टू QR। तो इन स्क्वायर, रीजन लिखो बिकॉज इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम इक्वलाइज करेंगे, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू x प्लस 3, प्लस एक्स को ये बाजू ले लेंगे, माइनस 3x माइनस एक्स, माइनस 7 को ये बाजू लेंगे, 7 प्लस 3 प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस 7 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। तो नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ x। अभी तुमको क्या फाइंड करना है, PS। अभी ना फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द PQ बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट? तो पहले PQ फाइंड करेंगे, PQ कितना है, 3x माइनस 7 है, तो 3 में हम लोग ये 5 x इज इक्वल टू 5 डाल देंगे, तो 3 5 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, तो PS भी 8, PQ भी PS 8 सेंटीमीटर। तो दिस इज ऑल अबाउट नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन इफ PR, अभी ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट है। नाउ वी विल डू द सेकेंड पार्ट। PR इज इक्वल टू PR दिस डायगोनल 5x एंड QR is 9x minus 8, find the QS, Now this second part, question number 4 second part, question number 4 second part here, what is given here, PR is 5x and QR is equal to 9x minus 8, find the QS.
हाँ, नाउ पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, राइट? नाउ हियर 5x is equal to 9x minus 8 because diagonals are equal. क्या आएगा? In a square diagonals are equal. तो ये 9 माइनस 8 ये बाजू जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 5x ये बाजू जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 9x माइनस 5x, सो 8 इज इक्वल टू 4x. x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2. तो ये तुमको x का वैल्यू कितना मिला? 2 मिला. नाउ हियर यू हैव टू फाइंड द QS. तो QS इज इक्वल टू 9x माइनस 8. तो 9 इंटू 2, x का वैल्यू 2 आया, 9 2 ज़ा 18 माइनस 8 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स. तो दिस इज ऑल अबाउट QS. You got question number 4 completed. Diagonals, and these diagonals are equal. स्क्वायर डायगोनल से इक्वल, दोनों को इक्वल करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. ABCD is a rectangle. If angle BPC is 124, calculate angle BAP and angle ADP. Now here this is rectangle. A B C D. These are the diagonals. And P this bisected, and 124 is this. Now angle BPC is 124 degree. Now you have to find the angle BAP. ये तुमको फाइंड करना है, और एंगल ADP ये एंगल फाइंड करना है. तो you have to find these two angles, right? Now in the rectangle opposite sides are equal, and this rectangle is also parallel one because opposite sides are equal and parallel, right? So first of all ये हम दोनों को x ले लेंगे, ये x. तो you will get this. तो let, because ये isosceles triangle base angles are equal, तो let angle PBC equal to angle PCB equal to x degree, because base angles of isosceles triangle are equal. तो in a triangle BPC क्या आएगा? x plus 124 equal to 180 degree. तो 2x is equal to 180 minus 124. तो 2x is equal to 56 degree. तो x is equal to 56 upon 2 equal to 28 degree. तो तुमको ये x is equal to क्या मिला? 28 डिग्री मिला. तो ये जो एंगल है ना, ये जो DBC is equal to angle this one. What you have to find out the ADP. Angle ADP. Both are interior alternate angle. Interior because parallel one, तो ये एंगल और ये एंगल interior alternate angles are equal, right? Therefore angle ADP is equal to angle this PBC equal to कितना आएगा? This one 28 डिग्री. रीजन लिखेगा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल. तो ये तुमको फर्स्ट ये मिल गया, सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन एडीपी मिल गया. अभी दूसरा क्या पूछा है? बीएपी. यू हैव टू फाइंड बीएपी. तो अभी बीएपी के लिए ना तुम लोग को ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, यू हैव टू फाइंड दिस. तो अभी दिस वन इज 28. दिस इज यस. हाँ, नाउ कंसीडर दिस एज अ y and this is exterior angle property. So angle this one angle PAB plus angle ABP is equal to 124 degree. exterior angle property क्या आएगा? exterior angle property. तो
तो एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी में दोनों को वाई करेंगे, वाई प्लस वाई दोनों इक्वल है, तो 2y इज इक्वल टू 124, सो y इज इक्वल 124 अपॉन 2 62 डिग्री। तो ये जो एंगल है हम लोग को बी ए पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल बी ए पी इज इक्वल 62 डिग्री, 62 डिग्री। समझा? ये जो एक्सटीरियर, तुम लोग को पता है हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी करते थे, एक्सटीरियर एंगल जैसे अभी ये रब कर रही हूँ मैं, जैसे कोई भी ट्राइंगल रहेगा, ये ट्राइंगल है, तो ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ये एंगल इज इक्वल सम ऑफ दीज टू एंगल्स, राइट। तो अभी ये जो ये ट्राइंगल है इतना, इस पे ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये सम ऑफ दीज टू एंगल्स, तो एक्सटीरियर एंगल कितना 124, तो 124 अपॉन 2, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। And all of you have to write the reason also, because reasons are very important in this geometry. Now question number 6. ABCD is a rhombus and if angle BAC is 38 degree, find this. अभी rhombus draw करेंगे because all sides are equal. Rhombus भी parallelogram ही है. A B C D. Now is 38 degree, parallelogram ABCD. Now you have to find the angle ACB, ये एंगल फाइंड करना है, तो दिस वन पैरेललोग्राम में देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। तो ये ट्राइंगल बना हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना, तो ये 38 तो ये भी 38 आएगा, बिकॉज बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। सो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू कितना, 38 डिग्री। रीजन लिखने का, बेस एंगल्स आर इक्वल। ये फर्स्ट मिल गया तुम लोगों को, AC भी मिल गया। अभी सेकंड है, क्या फाइंड करेंगे, DAC, यू हैव टू फाइंड DAC। हाँ, तो भाई DAC ये तुमको 38 मिल गया, 38 डिग्री AC भी। तो अभी देख एंगल AC भी 38 है, तो एंगल जो ये DAC इज ऑल्सो 38 डिग्री, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। So angle DAC is equal to angle BAC, ACB is equal to 38 degree. रखने का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये सेकंड मिल गया तुम लोगों को एंगल DAC। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, एंगल ADC, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल थर्ड में। हाँ, नाउ थर्ड में, नाउ दिस इज कितना है, एंगल 38 है, ये 38 है, तो ये भी 38, दोनों बेस एंगल्स। तो ये ना ट्राइंगल ADC, ये 38 प्लस इसको एंगल ADC, तो एंगल ADC प्लस 38 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ADC प्लस ये आएगा 76 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस 76 इक्वल टू 104 डिग्री। सो ये तीन एंगल मिल गए। फर्स्ट एंगल है एंगल ACB 38 डिग्री, सेकेंड एंगल DAC 38 डिग्री, एंड थर्ड एंगल ADC इज इक्वल टू 104 डिग्री सेल्सियस। और ये this is all about question number 6. Now question number 7. Now question number 7, we will do this. ABCD is a rhombus and angle BCA is equal to 35 degree. Find angle ADC. Now rhombus ABC, A B C and D. It is rhombus. Now what is given here? BCA is equal to 35 degree. Find the angle ADC. So you have to find this angle. You have to find ADC. तो rhombus तो you first of all what you have to find angle ADC. In rhombus all sides are equal, as you know, बराबर। Now this two sides are equal, तो ये 35 तो ये भी 35 आएगा,
राइट। तो एंगल, हाँ, तो एंगल दिस वन ए बी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल 35 डिग्री बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल। अभी ये 35 मिल गया अपने को, ये 35, तो ये 35 तो ये भी 35 होगा, इनके ऑल्टरनेट एंगल, राइट। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल 35 डिग्री इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये भी 35 होगी, बराबर। अभी ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अभी ये 35 तो ये भी 35, राइट। सो इन अ ट्राइंगल एडीसी, एंगल एडीसी प्लस 35 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एडीसी प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एडीसी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 110 डिग्री। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, देखो अपने को क्या दिया हुआ, बी सी ए इज गिवन एंड इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, so this part is isosceles triangle, this are equal, तो 35 तो ये भी 35, एंगल BAC is also 35, तो ये बेस ऑफ आइसोसेलेस, बेस एंगल्स आर इक्वल। नाउ इन BAC इज ये और ये एंगल इनके अल्टरनेट एंगल, दे आर बिकॉज पैरेलल लाइन, तो 35 ये भी 35, तो ACD इज इक्वल 35 डिग्री। नाउ इन इस ट्रायंगल ADC, तो ये दोनों बेस एंगल से ये 35 और एंगल ADC यू हैव टू फाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. PQRS is a parallelogram whose diagonals intersect at M and, तो find out this। हाँ, first of all parallelogram, हाँ, उसके जो डायगोनल्स है they intersect PQRS, PQRS। Now they are parallel to each other and angle PMS ये intersect at M। तो PMS ये कितना दिया हुआ है, 54 डिग्री, एंड QSR is 25 डिग्री, एंड SQR दिस एंगल इज कितना, 30 डिग्री। अभी तुमको क्या फाइंड करना है, एंगल आरपीएस, ये एंगल तुमको फाइंड करना है, और सेकंड वन PRS, दिस एंगल, दिस टू एंगल्स यू हैव टू फाइंड, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैरेललोग्राम है, ये 25 तो ये भी 25 आएगा, ये 30 तो ये भी 30, इंटर अल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल this one RQS, angle RQS is equal to angle MSP equal to 30 degree interior alternate angle equal, इनके alternate angles। तो अभी ये 30 हो गया, अभी ये ट्राइंगल ले लेंगे, कंसीडर करेंगे, तो इन अ ट्राइंगल MPMS, सो हम लोग क्या कौन सा एंगल फाइंड करना है, दिस वन RPS, राइट। RPS यू हैव टू फाइंड, एंड हाँ, तो एंगल RPS प्लस 54 प्लस 30, ये जो 44 30 और ये फाइंड करना है, इज इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल RPS प्लस 84 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल RPS इज इक्वल टू 180 minus 84 is equal to this one 96 डिग्री। तो फर्स्ट हमको मिल गया 96, ये दिस वन एंगल RPS, ये एंगल मिल गया, राइट। हाँ, अभी सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, एंगल दिस वन PRS।
यू हैव टू फाइंड द एंगल दिस पी आर एस, ये एंगल तुमको फाइंड करना है। अभी देखो कंसीडर दिस ट्राइंगल, राइट, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है। तो इन द सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट डन। नाउ वी विल डू सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट यू हैव टू फाइंड एंगल दिस पी आर एस। सो अभी एंगल पी आर एस इज इक्वल 54 माइनस 25 डिग्री। देखो अभी ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है, तो यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल में से ये माइनस करेंगे 25, तो यू विल गेट 9 दिस वन एंड दिस वन 29 डिग्री। तो एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 29 डिग्री। सो एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 29 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। It's very easy. Done. So, or third angle you have to find angle PSR. Angle PSR. अभी देखो ये थर्ड एंगल जो एंगल PSR है, इसमें दो एंगल है, ये 24 ये 30, ये हम दोनों का टोटल कर देंगे। ये 30 था, ये अल्टरनेट एंगल था ना, हमने फाइंड किया था। तो अभी PSR में दोनों का कॉम्बो, दोनों का एडिशन करेंगे। सो एंगल PSR is equal to angle RSP angle RSQ plus angle PSN। तो दोनों का एंगल का टोटल 25 प्लस 30 इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये आएगा थर्ड आंसर, इससे 55 डिग्री। PSR दोनों का कॉम्बो, दोनों का एडिशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Parallelogram ABCD in which diagonals AC and BD intersect at M. Prove that M is the midpoint of this. हाँ, अभी तुमको ये प्रूफ करना है थियरम। पहले मैं तुमको ऐसे बता देती हूँ कैसे करने का, देन आई विल राइट द आंसर। ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, A B C D इंटरसेक्ट हो रहे हैं एंड पैरेलल दिस इंटरसेक्ट M एंड प्रूफ करना है कि M इज द मिड पॉइंट। अभी इसमें से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हाँ ये, तो हाँ अभी प्रूफ करना है कि दिस इंटरसेक्ट, तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो अभी मिड पॉइंट तुमको क्या प्रूफ करना है, LM इज इक्वल टू MM, यू हैव टू प्रूव दैट, बराबर। अभी इन पैरेललोग्राम इसमें क्या ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस वन इक्वल, राइट। अभी दिस वन ये जो डायगोनल्स है तो बाइसेक्ट ईच अदर। तो अभी ये जो है ये और ये दोनों इक्वल है, ये बाइसेक्ट हो रही है, तो DM इज इक्वल टू MB, ये भी इक्वल है। एंड एंगल जो है ADB इज इक्वल टू एंगल ADB अल्टरनेट एंगल અને एंगल DBN ये दोनों एंगल इक्वल है, ये है ना ये दोनों इक्वल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, राइट। और ये दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट ईच अदर डायगोनल्स। और वन मोर थिंग इज दैट एंगल DML ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स से इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू ये हम लोग कॉन्ग्रुएंसी करते हैं ना, कॉन्ग्रुएंसी इन अ ट्राइंगल DML एंड इन अ ट्राइंगल MND, DM is equal to MB because diagonals intersect each other. Second point, this one angle LADB is equal to angle DBN into alternate angle. And third thing, angle DML is equal to angle NMB, vertical opposite angle. So these are congruent and A is a congruency. Therefore LN is equal to MB. अभी बताती हूँ। So first in the triangle LMD and triangle MNB. First of all, DM is equal to MB because in a parallelogram diagonals intersect each other, right?
बाइसेक्ट ईच अदर। ये फर्स्ट रीजन आ गया। हाँ, अभी सेकंड एंगल एल डी एम इज इक्वल टू एंगल एम बी एन। ये दोनों एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल कौन सा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है। सेकंड थर्ड थिंग क्या है, डी एंगल डी एम एल डी एंड एंगल एन डी एम एन इज इक्वल टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल एल एम डी इज इक्वल टू एंगल बी एम एन इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दोनों इक्वल रहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो देयरफॉर ट्रायंगल LMD is congruent with triangle MNB, कौन सी, ASA congruency, A से। Therefore अभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों के कॉन्ग्रुएंट के पार्ट भी, ट्रायंगल के पार्ट्स भी इक्वल रहेंगे। Therefore LM is equal to MN, LM is equal to MN। CPCT means corresponding parts of congruent triangles are equal. Therefore, prove that M is a midpoint of LN. Prove, hence prove. Proof कर दिया हमने। ये proof करने के लिए you have to show that this and this triangles are congruent. तभी होगा congruency. You have to use the congruency method. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, समझा बराबर कैसे करने का। इसमें तुमको क्या प्रूफ करना है कि ये एम मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में एल एम इज इक्वल टू एम एन तुमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए ये दोनों ट्राइंगल है ना, तुमको कॉन्ग्रुएंसी बताने का है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये अल्टरनेट एंगल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों इक्वली डिवाइडेड है तो ये भी इक्वल है। सो एंगल साइड एंगल, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी, राइट। Question number 9. Now question number 10. Exercise 70. Question number 10. In an isosceles trapezium, show that opposite angles are supplementary. अभी isosceles trapezium में क्या रहता है कि one pair of the side is parallel and other pair is not parallel, ये इक्वल रहती है, ये दोनों इक्वल, और one pair of side is parallel। तो अभी इसका नाम देंगे हम लोग ABCD। अभी what you have to prove that कि the show that opposite angles are supplementary, तो ये दोनों एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री है, you have to prove that, right। सप्लीमेंट्री means what, कि दोनों का टोटल 180 है, that you have to prove, राइट। अभी ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। सो नाउ इन ABCD ट्रेपेजियम, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स, हाँ। एंड एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी को इंटीरियर एंगल्स, हाँ, को इंटीरियर एंगल्स। नाउ इसमें क्या रहता है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या रहता है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बेस एंगल्स। सो आइसोसेलेस बिकॉज दिस साइड्स आर इक्वल साइड है तो उसके बेस एंगल्स भी इक्वल है। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B because isosceles base angles of isosceles trapezium are equal। अभी A और B इक्वल है, राइट। तो इसमें हम लोग क्या प्रूफ करना है कि ऑपोजिट साइड्स शो दैट द ऑपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री।
ऑपोजिट एंगल्स, ये और ये एंगल इक्वल है। हाँ, सो एंगल ए हम लोग है ना, इसका एंगल ए है, तो ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, दिस वन ऑपोजिट एंगल बी, बी लिखेंगे, डी और बी। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो अभी हमने इधर क्या लिखा है, एंगल ए प्लस डी 180 डिग्री। तो हमने प्रूफ क्या किया है कि एंगल ए और बी इक्वल, तो हम लोग रिप्लेस करेंगे, एंगल ए की जगह क्या लिखेंगे, एंगल बी। तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स है, तो ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, राइट, hence the result, hence the proof. And angle similarly, angle A plus angle C is equal to 180 degree, ये भी angle A plus C 180 degree, B plus D 180 degree। ये जो हमने लिखा था ना, ये दोनों उल्टा पुल्टा कर दिया बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो ये देख एंगल A plus B, B plus D and angle A plus C, hence proof opposite angles are supplementary। समझा बराबर, वेरी इजी। पहले क्या करने का, एंगल ए प्लस डी को इंटीरियर दोनों 180 डिग्री, बी प्लस सी को इंटीरियर 180 डिग्री, बराबर। अभी ये आइसोसेलेस है तो इसके बेस एंगल्स इक्वल, तो ए बी इक्वल है, राइट। अभी ए बी इक्वल है तो हमने ए की जगह बी रख सकते हैं और बी की जगह ए लिख सकते हैं, और ये उल्टा पुल्टा करके इन टू राइट। सो एंगल ए, द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 10 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ABCD is a parallelogram. This one. ABCD is a parallelogram. What kind of quadrilateral is it? अभी इसमें क्वेश्चन है कि एक पैरेललोग्राम ABCD है, इसमें क्या दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू एक पैरेललोग्राम। हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। हाँ, A B C एंड D। हाँ, अभी इसमें क्या क्या कंडीशन क्या है कि AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BD, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों डायगोनल से इक्वल है। एंड AC इज परपेंडिकुलर, अभी ये थोड़ा अलग से डायग्राम ड्रॉ करेंगे बिकॉज परपेंडिकुलर है। A B C D। अभी इसमें क्या दिया हुआ है कि AC इज इक्वल टू BD, दिस इज गिवन, एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ये दोनों परपेंडिकुलर है। और मैंने बोला था कि व्हेन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर, तो कौन सा हो जाएगा, वो रोम्बस है। क्या है, रोम्बस। तो द रोम्बस में भी हो सकता है और सो इट इज अ रोम्बस। क्या आएगा, फर्स्ट है रोम्बस। सेकंड क्वेश्चन है, हाँ, AC is perpendicular to BD but is not equal to it. No, अरे सॉरी, इसमें रोम्बस नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा, बिकॉज इन द स्क्वायर क्या रहेगा, डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स द इक्वल भी रहते हैं, प्लस ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें क्या है, डायगोनल इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है। और रोम्बस में क्या रहता है, डायगोनल परपेंडिकुलर रहता है लेकिन अनइक्वल रहती है। तो ये फर्स्ट वन इज द स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर, फर्स्ट वन। नाउ सेकंड कंडीशन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 11, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD बट नॉट इक्वल टू इट। अभी जैसे हम लोग ये जो है रोम्बस ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये परपेंडिकुलर तो है, A B C D परपेंडिकुलर है लेकिन अनइक्वल है, नॉट इक्वल, तो इट इज रोम्बस। क्या आएगा, रोम्बस। नाउ थर्ड वन, AC इज इक्वल टू BD बट AC इज नॉट परपेंडिकुलर टू BD। थर्ड वन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दिस वन, ये A B C D, ये दोनों AC एंड BD इक्वल है बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो दिस इज अ रेक्टेंगल। क्या आएगा,
रेक्टेंगल। समझा कौन सी डायग्राम है? दिस इज डन क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम दैट बाइसेक्ट ईच अदर। वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स क्या? इक्वली डिवाइड करते हैं। दैट इज बाइसेक्ट मीन्स दे आर डिवाइडेड इक्वली। तो इस पे भी तुम लोग को है ना ये प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी का जैसे रूल फॉलो करना पड़ेगा। ए बी सी डी, अभी ये ओ है बाइसेक्ट, राइट। तो अभी तुमको क्या प्रूफ करना है कि दिस वन डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये डायगोनल से ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये बाइसेक्ट ईच अदर, बराबर। तो अभी इसके लिए तुम लोग को ये और ये ट्राइंगल तुमको कॉन्ग्रुएंसी करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस साबित करना पड़ेगा। सो इन अ ट्राइंगल ए ओ बी एंड AOB एंड अ ट्राइंगल COD, पहले ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और ये जो है दिस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बिकॉज पैरेललोग्राम में क्या, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये भी दोनों, ये ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल दोनों। तो ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो लोगों पहले एंगल this one OAB is equal to angle this one OCD interior alternate angle। then angle OBA is equal to angle ODC, ये भी सेम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एंड साइड कौन सी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, लिखने का ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल, साइड एंगल ए सी, देयरफॉर ट्राइंगल AOB is congruent with triangle COD। सो अभी अपने को प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों इक्वल बाइसेक्ट हैं। देयरफॉर OB is equal to OD and OA is equal to OC CPCT। क्या लिखेगा रीजन, CPCT मीन्स क्या, corresponding parts of congruent triangle are equal। Therefore this diagonals AB and this is diagonal BD and AC bisect each other, hence prove। hence इनको प्रूफ कर दिया कि ये प्रूफ करने के लिए हमको ये इक्वल बताने का था, तो इसके लिए हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी बता दिया, ए से कॉन्ग्रुएंसी। अभी क्वेश्चन नंबर 13, ये 12 था, फिर क्वेश्चन नंबर 13। Now question number 13. If the diagonals of parallelogram are of equal length, so the parallelogram is a rectangle, prove that। अभी चारों इक्वल है, इक्वल लेंथ है, diagonals of parallelogram are equal length, then दोनोदोनों डायगोनल्स इक्वल है। अभी इसमें क्या प्रूफ है कि जो दोनों डायगोनल्स इक्वल है। अभी प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, और रेक्टेंगल के लिए हमको क्या प्रूफ करने का, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड वो एंगल्स 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। हाँ प्रूफ करना है, तो ना इन अ ट्रायंगल, इसमें हम लोग ये डायग्राम ये इसका, हाँ इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ये आधा ट्रायंगल, एंड इन अ ट्रायंगल ए बी डी, ये जो दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, हम लोग इसमें ए बी कॉमन है, राइट। और ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन है क्योंकि डायगोनल्स इक्वल दिया हुआ है, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ऑपोजिट साइड को पैरेलल और दिस इक्वल रहता है, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। सो देयरफॉर एंगल ए, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एंगल बी। बट
एडी है वो पैरेलल टू BC है, ऑपोजिट साइड, हाँ इक्वल। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल 180 डिग्री। तो ये दोनों इक्वल है, तो एंगल ए प्लस एंगल 180 डिग्री, तो ये 90, 180 का आधा हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। चलो मैं लिखती हूँ कैसे बताते हैं। नाउ इन अ ट्राइंगल ABC and a triangle ABD and triangle ABD। अभी इसमें दो ट्राइंगल में AB कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB कॉमन, राइट। नाउ एंगल दिस वन AD इज इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ये ऑपोजिट साइड इक्वल है। और दूसरा है कि BD इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू BD गिवन, डायगोनल्स इक्वल दिया हुआ है ऑलरेडी। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ABD, SSS कॉन्ग्रुएंसी, क्या आएगा SSS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल ये हो गया। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, कौन सा ये CPCT रीजन। अभी ये दोनों पैरेलल है, AD और BC पैरेलल है, AD एंड BC पैरेलल है, तो ये AD BC पैरेलल, तो ये दोनों का तो को इंटीरियर एंगल हो गया, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर। बट हमने क्या प्रूफ किया, दोनों इक्वल है। सो एंगल A, दोनों B के जगह हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल 180 डिग्री, सो 2 एंगल A इज इक्वल टू 180, so angle A is equal to 180 upon 2 is equal to 90 डिग्री। so angle A is equal to angle B is equal to 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री हो गए, ये दोनों 90 डिग्री हो गए, तो इट इज रेक्टेंगल, therefore it's true। therefore angle D और C भी 90 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, therefore ABCD is a rectangle। ABCD is a rectangle। डन। पहले क्या बनेगा, ये जो ट्राइंगल है ABD एंड ट्राइंगल ABC एंड ABD, इसको कॉन्ग्रुएंट्स बताने का। इसमें AB कॉमन, BDN इज गिवन एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये तीनों SSS कॉन्ग्रुएंट्स CPCT, एंगल AB ये इक्वल है। अभी ये AD और BC पैरेलल में ऑलवेज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो एक ये पैरेलल, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, तो को इंटीरियर का टोटल कितना 180। तो हमने प्रूफ क्या किया, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हमने एंगल है तो B की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो A प्लस है 180, तो 180 अपॉन 2 90 डिग्री, तो एंगल B है 90 डिग्री, हेंस इट इज रेक्टेंगल। एंगल क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीटेड। नाउ 14। Now question number 14. In a parallelogram ABC, E is the midpoint of AD and F is the midpoint of BC. Prove that this is a parallelogram. अब ये पैरेललोग्राम है, इसमें हम लोग को ये एक दिया हुआ इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, ABCD पैरेललोग्राम है, और इसमें E एंड ये F है। अभी हमको क्या प्रूफ करना है, BFEDE ये पैरेललोग्राम, उसको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम। अभी कोई भी पैरेललोग्राम रहेगा ना, तो इसका ऑपोजिट साइड इक्वल रहनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। तो इन अ ट्राइंगल दिस वन, हाँ ये पैरेललोग्राम। अभी E जो है वो मिड पॉइंट है इसका, और F इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है इसका, थोड़ा इसे ड्रॉ करेंगे, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, मिड पॉइंट है। तो अभी ADE इज अ हाफ ऑफ AD एंड BF इज हाफ ऑफ BC, बराबर। तो AD दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई, AD एंड हाफ। तो अभी ये पैरेलल है, AD है पैरेलल टू BC है, सो DE इज इक्वल पैरेलल टू BF, ये दोनों पैरेलल हो गए, दोनों अदर। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल E जो है, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ
E है मिड पॉइंट ऑफ कितना AD एंड F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC. So DE is equal to half AD बराबर बिकॉज ये मिड पॉइंट है एंड गिवन एंड BF is equal to half BC. बट क्या ये AD और BC इक्वल है बट AD is equal to BC. Therefore DE is equal to therefore DE is equal to BF. ये दोनों इक्वल हो गए. अभी इक्वल तो प्रूफ हो गया. हाँ ऑल्सो AD है वो पैरेलल टू BC है. Therefore DE is in parallel to BF. तो दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है राइट. Therefore this one BFDE is a parallelogram. क्या आएगा हैंस प्रूव. समझा. पहले क्या करना ये जो मिड पॉइंट है E तो ये हाफ हो गया इसका हाफ है ये इसका हाफ है तो ये क्या होगा E इज अ मिड पॉइंट तो DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD BF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC दोनों बट AD एंड BC देसा इक्वल ये दोनों इक्वल है ऑपोजिट साइड से इक्वल तो DE इज इक्वल टू BF हो गया ये प्रूफ. सेकंड थिंग AD पैरेलल भी है इक्वल तो है पैरेलल भी है तो AD इज पैरेलल टू BC तो DE इज आल्सो पैरेलल टू BF एंड देन दिस इज द पैरेलल हैंस प्रूव. This is the 14th sum. Now 15th sum. Question number 15. In a parallelogram ABCD, E is the midpoint of AB and C bisect the angle BCD. Prove that AE is equal to AD and DE is the bisects an angle ADC and angle BEC is the right angle. बहुत सारा प्रूफ है.